So we have this question called nth magical number. So the description of this problem is, I'll quickly give the description of it. So basically what it wants ki you have a number which is like the 5th, 6th, 7th, 8th, like nth number, okay, and you have two integers a and b. Now what they want a magical number which is the multiple of a or b or both, right? And you have to start from a, like the minimum of a and b. Usually a is the minimum, and you have to give the nth magical number. So magical number is nothing but the multiple of a or multiple of b or multiple of both a and b, and it should be the nth. For example, you have 2 and 3, and they want the fifth magical number. What is the fifth magical number? 2, 4, sorry, before 4 you will have 3, and then you will have 4, then you will have 6, and then after that you have 8, and then you have 9, right? So what's the fifth magical number? The eighth is a fifth magical number in this case, right? So this is the question, and you can read the description of this problem here. It is like very simple, nothing complicated in the problem statement. Okay, so I will give you two solutions. One is the most intuitive solution, and second one is the smart approach. Okay, so let's start with the first approach. So what we will do is we'll basically start from a. So we will actually run a endless loop. Just like they want. So suppose they want fifth magical number, no? So what we'll do, we'll create a counter int and magical number count, something like that. I will initialize it with 0, and I will run this until magical number count became equal nth, right? Or magical number count is like less than. If it is less than, then it will run the loop. So basically we will run the loop endlessly until we find the nth or we find the n magical numbers. Okay, so quickly isko main complete kar deta hu. So basically you have to do is like you will start from index. Index is like a, in our case it is 2. So basically what we'll do, if index modulus what, you have to divide this number with a equal 0, or if you divide the index, basically you are checking whether or not this particular index is a multiple of a or b or both, equal 0. So what we'll do, you basically increase the magical number counter plus, right? And here what you will do is you also have to do the index plus, right? And once you out of this loop, you have the fifth magical number. So what you will do is simply return the basically, okay, so you have to store the answer as well. So int answer, and here you will like what you can do is, in this case when we are incrementing the count, we are also storing the index. So basically you can do is answer is equals to index, and you are sure the answer is updated with the latest number. So you have to run the answer. So this is the approach, right? So let's quickly solve this. So what I'll do is I'll run an endless loop until like this is n. Okay, so I'll give an int magical number count equals 0. What you will do is
कब तक चलाएंगे? मैजिकल नंबर काउंट शुड बी लेस देन n, right? Why not equal to none n? Because if it equal to null equal to n, then also it will rain, na? So we want one less than, and once we are inside this, uh, we will come closer to the n. Okay, so if so we need an index equal math dot min of a comma b, right? So you will start from the minimum of a and b. We have to initialize it int if index modulus what a equal 0 and sorry, or index modulus b equal 0, right? So it means it is a divisible of this, and what we'll do is we'll increase the magical number count plus. Also we have an answer, and answer equal g. Answer is initially we know the answer is always exists, so what we can do is we can initialize it with 0. We don't have to worry about that. Now answer equal index, right? And here we'll do is index plus. We are increasing the index, and then we can return the answer, right? So let's run this. लगाई था. Okay, so it is working. If you submit this, it will not work. It will not work because look at this number. The index, like the number, the magical number that they want can be 1 billionth. All right, and you know that this is like a very huge calculation, and we will not be able to complete it in one CPU second. And usually these online coding platform gives us the time of like 1 or 2 seconds. So I think we have to give some optimal solution which is like less than order of n. देख रहे हो आप? Less than order of n you have to give the answer. Usually your answer should contain 10⁸ operations at max. Okay, I'll show you if I submit this. तो आप देख रहे होगे मैंने इसको भी थोड़ी देर पहले सॉल्व भी किया था, ठीक है? तो ये वही टाइम लिमिट एक्सीड होगा ना. अभी इसका थोड़ा स्मार्ट अप्रोच जो है ना उसको एक बार देख लेते हैं. ओके, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं क्या? नहीं, चलो. मूव नहीं करते हैं, नीचे जाते हैं, ठीक है? ठीक है, तो अप्रोच सेकंड वो क्या कहती है? देखो, अभी ना आप ऐसे सोचो कि जो आपका मैजिकल नंबर है वो बेसिकली क्या है? मेरा ए का मल्टीपल है ना, और बी का मल्टीपल है, वही तो होता है मैजिकल नंबर. तो आप ऐसे सोचो इसको कि आपको ए का मल्टीपल चाहिए बस, बी आई नहीं केस में, और आपको nth मैजिकल नंबर चाहिए. तो वो क्या होगा बेसिकली? जैसे अगर मैं ए की वैल्यू 2 सेट कर दूँ तो 2 4 6 8 9 8 10 ये होगा ना. तो फिफ्थ मैजिकल नंबर चाहिए तो ये हो रहा. तो बेसिकली आप क्या करते? आपको nth मैजिकल नंबर चाहिए तो आप n को a से मल्टीप्लाई कर देते, ये आपका आंसर हो गया होता, राइट? अभी इन्होंने पर बोला कि a का भी होना चाहिए और b का भी होना चाहिए. चलो b की वैल्यू मेरी मान के चलो 3 है और मेरे को n की वैल्यू है मेरी 5, ठीक है? मेरे को फिफ्थ मैजिकल नंबर चाहिए. तो अभी क्या होगा ना, जो 3 के मल्टीपल है ना वो भी बीच में कहीं ना कहीं घुस जाएंगे यहाँ पे,
तो बेसिकली वो 10 से तो नीचे नीचे ही होगा, फिफ्थ नंबर, ठीक है। और ऐसे आप देख सकते हो इसको कि 2 देन 3 एंड देन यू हैव 6 एंड देन 8 एंड देन यू हैव 9 एंड देन यू हैव 10, राइट। सो इट इज़ लाइक 6 के ना एक ये आ गया और एक ये 2 नंबर एक्स्ट्रा आ गए यहाँ पे, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी जो रेंज है, पहले ये तो सिंपल आप ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं ना। अभी अगर आपको ए और बी दोनों के मल्टीपल चाहिए तो आप बेसिकली आपको क्या करना है, आपको पहले एक रेंज पता चल जाए कि भाई मेरा नंबर यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा। जैसे कि मेरा ए और बी में से क्या मिनिमम था, 2, तो 2 से स्टार्ट करेगा और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, इसमें इन दोनों में जो मिनिमम है ना, इन दोनों में जो मिनिमम है उसकी मल्टीप्लाई एन से करते। जैसे कि हमारी ये जो रेंज थी ना, बेसिकली अगर मेरा बी नहीं होता तो क्या होता, मेरा नंबर इसमें तो लाइक करता ही करता ना, राइट। अभी क्या हो गया कि 3 के भी आगे तो ये रेंज बड़ी है, घटी नहीं है, मतलब 10 के अंदर अंदर बहुत सारे नंबर और आगे हुए हैं, जो कि 2 नंबर और आगे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरा जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, इसकी मल्टीप्लाई कर दो एन से, राइट। तो जैसे अगर ए ही मिनिमम है तो ए टू ए एन, इसके बीच में लाई करेगा मेरा नंबर। इतना क्लियर है ना, ठीक है। अभी हमारा काम हो गया बेसिकली अगर देखा जाए ना। तो अभी थोड़ी सी ना मैथमेटिक्स आएगी, ये ऐसे फर्स्ट टाइम दिमाग में सॉल्यूशन नहीं आएगा, मेरे भी नहीं आया था, मैंने ऑनलाइन चेक किया था तभी मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठी कि इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। तो बेसिकली क्या है कि ये मेरा रेंज है ना 2 से लेके 10 तक की, ठीक है। मेरी रेंज लगाते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरे नंबर्स हैं, ऑलराइट। अब मेरे को क्या चाहिए भाई, मैं 10 पे खड़ा हूँ, ठीक है। ये मेरी मैक्सिमम, मेरा वो है कि भाई इससे बड़ा तो वो नंबर नहीं होगा जो मेरा nth नंबर है, ठीक है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मेरे को ये चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो 10 से कम कम या 10 को मिला के कितने मैजिकल नंबर अब तक आ गए होंगे, ये आप बता सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 पे खड़े हो आप, 10 को मिला के और 10 से छोटे छोटे, मतलब 2 से लेके 10 तक के बीच में कितने मैजिकल नंबर आ गए होंगे। मैजिकल नंबर इन द सेंस कि जो ए और बी दोनों के मल्टीपल हैं, ऐसे कितने नंबर होंगे। तो आप कैसे निकालते हो कि जैसे अगर मैं इस रेंज की बात करूं तो अगर आप 10 पे खड़े हो तो 10 को मिला के 2 के कितने मल्टीपल हैं। मैजिकल नंबर इज नथिंग बट द मल्टीपल ऑफ ए एंड बी, दैट्स इट। सो 10 पे खड़े हो तो 10 पे 10 और 10 को मिला के 2 के कितने हैं मल्टीपल, 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 नंबर है, 5 मैजिकल नंबर हैं। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 से भी आप कर लेते डिवाइड, जैसे कि अगर मैं बात करूं 3 6 और 9 और यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो आप 10 पे खड़े हो ना, तो आप एक काम करो, 10 को 3 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आएगा 3। तो 10 और 10 को मिला के मतलब यहाँ तक इस रेंज में कितने मैजिकल नंबर है, 3 मैजिकल नंबर है, 10 आया ही नहीं। तो मेरे को बेसिकली 2 के मैजिकल नंबर मिल गए और 3 के मैजिकल नंबर मिल गए। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 10 डिवाइडेड बाई ए प्लस 10 डिवाइडेड बाई बी, इतने मेरे मैजिकल नंबर आ गए होंगे। अब यहाँ पे एक कैच है, जो मेरा 6 है ये और जो मेरा 6 है ये आ गया यहाँ पे, ये मेरा 2 ने भी दे दिया और 3 ने भी दे दिया, राइट। ये तो मेरे को नहीं चाहिए था, तो ये 2 बार आ गया, तो इसके एक माइनस हमको करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये जो आएगा नंबर, ये नंबर कौन सा आएगा, अगर मैं ए और बी की बात करूं तो ए और बी के पहाड़े अगर मैं लिखता हूं, टेबल अगर मैं लिखता हूं तो जैसे 2 का पहाड़ा ये हो गया, 3 का पहाड़ा ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों ए और बी की अगर मैं बात करूं तो इनका जो लीस्ट एलसीएम जो इनका होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, इन दोनों के पहाड़े में कौन सा नंबर पहला होता है जो दोनों में सेम आता है, वो 6 होता है, ठीक है। अगर आपने ए और बी का एलसीएम निकाल लिया और आपने इस नंबर को उस एलसीएम से डिवाइड कर दिया तो उसके कितने मल्टीपल अब तक आ गए होंगे। तो 10 डिवाइडेड बाई 6 करूँ तो 1, तो बेसिकली -1 मेरे को करना है। ये समझ में आई, बेसिकली मेरे को 10 डिवाइडेड बाई एलसीएम करना है। अब मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, अगर मैं इसमें ए और बी की वैल्यू पुट करूँ तो 5,
जमा 3 माइनस 1, ये होगा मेरा 7। ठीक है, तो क्या 7 नंबर थे? 1 2 3 4 5 6, 5 3 3 9 10, 2 और 3 में 6 आएगा ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 6। हाँ, तो 1 7। ओके, 2 कुछ मिस किया है क्या? हाँ 4 मिस किया ना भाई, ठीक है, आई एम सो सॉरी। तो 7 नंबर है टोटल यहाँ पे अगर देखो तो आप, राइट। तो ये इसने मेरे को दे दिया। तो आप यहाँ पे खड़े होकर ये बता सकते हो ना कि भाई इस नंबर को मिला के और इस नंबर से पहले पहले मेरे अब तक 7 मैजिकल नंबर आ चुके हैं, 7 मैजिकल नंबर आ चुके हैं। और मेरे को चाहिए कितना था? 5th नंबर, ठीक है। तो कहीं 10 से तो कहीं कहीं लाई करेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी अगर ये जो लॉजिक है ना, आपको पहले इसको समझ, इसको वीडियो को थोड़ा पॉज करो और थोड़ा ना इसको समझो यहाँ पे कि ये कैसे, ये मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। वीडियो को वापस देख सकते हो। अभी अभी आता है कि सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन क्या होगा, मेरे को पता है ना भाई रेंज क्या है, 2 से लेकर 10 तक की रेंज है, मेरे को पता है ना। तो इसका मीडियन निकाल लो। मीडियन क्या होगा? बाइनरी सर्च, 6 पे खड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं इस पे खड़ा होकर ये पता कर लूँगा ना कि मेरे अब तक कितने मैजिकल नंबर आ गए होंगे। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर अगर मैं देखूँ तो 6 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 3 माइनस 6 डिवाइड बाई 6, तो कितना आ गया? 3 + 2 - 1, कितना आ गया? 4 आ गया। तो 4 मैजिकल नंबर आए अब तक 6 को मिला के। तो 5 हमें मेरे को चाहिए, तो मेरे को पता है कि भाई 6 से आगे आगे मिलेगा मेरे को 5वां नंबर। तो अब मैं अपना बाइनरी सर्च कैसे करूँगा? मैं 7 6 को तो नहीं मिलाऊंगा, मैं 7 से लेके 10 तक के बीच में फिर मैं कैलकुलेट करूँगा। 7 से 10 के बीच में जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा? 17 डिवाइडेड बाई 2, जो कि क्या होगा? 17 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा? 8, ठीक है। तो मैं 8 पे खड़ा हो जाऊँगा। अब मैं 8 पे कैलकुलेट करूँगा, 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 6, कितना हो जाएगा? 4 + 2 - 1, कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो मेरे को पता है कि 8 जो है ना भाई, यही है मेरा 5th नंबर, राइट। यही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बेसिकली इसको मैं लेफ़्ट, बेसिकली मेरा पहले ये लेफ़्ट था, ये मेरा राइट था। तो मेरे को पता है कि अगर ये होता है तो मैं बेसिकली जो मेरा लॉजिक है मैं उसको अभी आपको बताऊंगा लिख के। मैं बेसिकली इसको ना राइट को ये बना दूंगा, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा फिर, क्योंकि मेरा जो लूप की कंडीशन होगी वो लेफ़्ट छोटा होना चाहिए राइट से, तो वो बाहर आ जाएगा। मेरे को पता है कि मेरा आंसर जो है वो लेफ़्ट में पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ, ठीक है। ओके, तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। ये तो नहीं चलेगा अब, तो इसको हटाते हैं, ठीक है। तो मैं पहले, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को रेंज निकालनी है ना। तो पहले स्टेप 1 इक्वल रेंज, गेट रेंज। तो मेरा जो इंट लेफ़्ट, अभी देख, एक इसमें एक चीज़ देखते हैं कि मेरे को यहाँ पे इंट लेना चाहिए या फिर लॉन्ग लेना चाहिए। इसको हम देखेंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे जाके। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं n को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ a या b में से किसी एक से, ठीक है। तो 10 की पावर 4 गुना 10 की पावर 9 भी मेरे को करना पड़ सकता है, जो कि 10 की पावर 13 हो जाता है। क्या इंट में 10 की पावर 13 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो मेरे को लॉन्ग लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो लॉन्ग लेफ़्ट इक्वल ये क्या होगा, मिन मैथ डॉट मिन ऑफ ए कॉमा बी, और लॉन्ग राइट इक्वल मैथ डॉट मिन, सॉरी, मैथ डॉट मिन ऑफ ए कॉमा बी, इसको मल्टीप्लाई करना n से। तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। और अभी इसको बेसिकली टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ये मेरे को सॉल्यूशन डिज़ाइन करते समय समझ में आया था, क्योंकि आई थिंक मैथ डॉट मेन इंट देता है, क्योंकि ये और बी इंटीजर हैं, तो वो इसको लॉन्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ, ये देख लेना, ठीक है। अभी स्टेप 2 क्या है अपना, एक बार ना सारी स्टेप लिख ही देते हैं, ठीक है। तो मेरा स्टेप 1 था, मेरे को रेंज चाहिए। स्टेप 2 क्या है, मेरे को
बेसिकली अभी बाइनरी सर्च करना है इस रेंज पे, राइट। तो मेरे को बाइनरी सर्च करने के लिए मेरे को एलसीएम चाहिए, राइट। तो मेरा स्टेप 2 क्या होगा, फाइंड एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, राइट। और फिर मेरा स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 मेरे को एलसीएम मिल गया तो मैं अभी बेसिकली बाइनरी सर्च कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को बाइनरी सर्च एग्जीक्यूट करने के लिए एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ मैजिकल नंबर निकालने होते हैं उस पॉइंट पे खड़े होके। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बाइनरी सर्च कर दूँगा, ठीक है, और बाद में आंसर निकल जाएगा। यही तो है। अभी इस पे आते हैं। तो एलसीएम और कैसे निकालते हैं ये मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हो। बट मैं इतना बता सकता हूँ कि दो नंबर का एलसीएम निकालते हैं ना, तो ए गुना बी अगर हम करेंगे ना, तो वो बेसिकली एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है। और एलसीएम एचसीएफ को अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो क्या होता है कि जैसे आपके पास ना दो धागे हैं, इसको ऐसे समझो कि आपके पास दो धागे हैं, उनकी लेंथ अलग अलग है, तो आपको ना एक ऐसी लेंथ निकालनी है जो इसमें भी वेस्ट ना हो और इसमें भी कुछ वेस्ट ना हो, समझे। और वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम निकालनी है। जैसे अगर ये 2 लेंथ की है और ये अगर मेरी 4 लेंथ की है, तो मैं क्या करूँगा, तो दो मेरी एक ऐसी लेंथ है जो इसको भी दो दो भाग में डिवाइड कर देगी, तो मेरे पास इक्वल नंबर ऑफ इक्वल थ्रेड्स आ जाएंगे। बेसिकली मेरा कोई वेस्टेज नहीं हुई। अगर मेरा ये 3 होता, ये मेरा 5 होता, तो बेसिकली वो लेंथ होती 1। तो 1 के 3 टुकड़े यहाँ से बनते और 5 टुकड़े यहाँ से बनते। तो ये मेरा जो बेसिकली होता है, इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, वो निकालना आसान होता है, और हम फिर एलसीएम निकाल लेंगे इसकी मदद से, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूँ, इंट, हाँ एक और चीज़, चलो एक बार ऐसे सोचते हैं। इंट मेरे को क्या निकाला, एलसीएम। तो पहले मैं एचसीएफ निकाल लूँगा, गेट एचसीएफ कोई मेथड बना देंगे, इसमें ए कॉमा बी पास कर देंगे, और मेरा इंट LCM इक्वल A मल्टीप्लाई बाई B डिवाइडेड बाई HCF, राइट। ये मेरे पास LCM आ गया। अभी ये इंटीजर होना चाहिए, डबल होना चाहिए, आपको क्या लगता है? इस चीज़ का ध्यान रखो, LCM और SCM हमेशा इंटीजर होते हैं, ये कभी फ्लोट में नहीं आ सकते। ये मैथमेटिक्स है, ये भी अगेन एक मैथमेटिक्स है। चलो एक फंक्शन लिख लेते हैं, गेट HCF। तो प्राइवेट होगा, इंट देगा गेट HCF इंट ए कोमा इंट बी, राइट। मैं यहाँ पे इसको आप देख लेना, सिंपल है ये, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो अगर ए बड़ा होगा तो ए में से माइनस करता जाऊँगा, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, ए को छोटा बनाते जाएंगे, ए इक्वल ए माइनस बी, एल्स बी को छोटा बना देंगे, बी इक्वल टू बी माइनस ए, राइट। ऐसा कर देंगे और लूप से बाहर आ जाएंगे और रिटर्न कर देंगे। कोई भी ए और बी बराबर हैं, कोई भी भेज दो, ए भेज देंगे, आ गया, ठीक है। अभी है बाइनरी सर्च करने का काम। देखो बाइनरी सर्च हमको कैसे करनी है, मैं कब तक चलाऊँगा ये लूप, वाइल मेरा जो लेफ़्ट है वो राइट से छोटा है। ये जो बेस कंडीशन होती है ना, ये आपको ना प्रैक्टिस से आ जाएगी। पर बाइनरी सर्च इसको ना, जैसे यहाँ पे मैंने ये किया था, आई थिंक कुछ तो मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा था, आंसर 7 आ रहा था बट आंसर 8 है। बट लेकिन इसको देखते हैं बाद में ना। देखो लेफ़्ट और राइट देखूँगा मैं, लेफ़्ट राइट छोटा होना चाहिए, ये मेरे बेस कंडीशन हो जाएगी। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं एक बार, मतलब ड्राई रन करके, पर अभी के लिए लेफ़्ट राइट से छोटा होगा। और मैं यहाँ पे बेसिकली मेरे को मिड निकालना होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे मिड निकाल लूँ, पहले उसको इंटीजर देखते हैं, फिर देखते हैं लॉन्ग चाहिए कि इंट चाहिए। मिड मेरा क्या होता है, मिड मेरा होगा कि जो मेरा लेफ़्ट है, प्लस जो मेरा राइट है डिवाइडेड बाई 2, ये तो होता है मिड, ठीक है। अब जो मेरा लेफ़्ट है और जो मेरा राइट है वो मेरा, मुझे पता है लॉन्ग है ये, राइट। तो बेसिकली ये लॉन्ग ही होगा मिड भी, ठीक है। तो ये क्यों हुआ लॉन्ग, क्योंकि मैक्सिमम नंबर मेरा कितना आ सकता है, 10⁻9 इंटू 10⁻13, तो 10⁻13 का हाफ कितना हो जाता है,
10^13 का हाफ कितना हो जाता है? 10^7, 6 और 7, तो वैसे इंटीजर में आ जाएगा, इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है, पर अभी लॉन्ग में लेके चलते हैं इसको। ठीक है, मिड आ गया। अभी मेरे को चाहिए कि इंट इंट में रखते हैं अभी बेसिकली नंबर, मैजिकल नंबर बिफोर मिड या फिर इंक्लूडिंग मिड। मैजिकल नंबर बेसिकली इसको ना बिफोर ही समझो, इसमें इंक्लूडिंग है, मतलब कि मिड से पहले पहले कितने मेरे मैजिकल नंबर हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? मेरा मिड है, उसको डिवाइड करूँगा ए से, प्लस मिड को डिवाइड करूँगा बी से, माइनस कर दूंगा क्या, मिड में से जितने मेरे एलसीएम के एक्स्ट्रा आ गए थे। राइट, अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ मैजिकल नंबर बिफोर मिड, मतलब कि मेरा मैजिकल नंबर्स बिफोर मिड, मेरा मिड 6 था, तो मैजिकल नंबर बिफोर मिड मेरे यहाँ पे कितने आ रहे? 4। तो वो जो नंबर है क्या वो मेरे n से छोटे हैं? अगर वो n से छोटे हैं, मतलब कि n से छोटे हैं, तो मेरा यहाँ पे आंसर लाई करेगा, तो मेरा लेफ्ट चेंज हो जाएगा ना भाई। जो मेरा पहले लेफ्ट 2 था, अभी लेफ्ट मेरा 7 हो जाएगा। तो मेरा जो लेफ्ट है वो बदल के क्या हो जाएगा? लेफ्ट इक्वल मिड प्लस 1, सिंपल सी बात है। एल्स मेरा राइट चेंज हो जाएगा, राइट इक्वल क्या होगा? अगर सपोज मेरा नंबर यहाँ पे लाई करता तो मेरा राइट हो जाता 5 ये, या फिर राइट हो जाता मेरा मिड, मान लो, कुछ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये करना है मेरे को, और अब मेरे को आंसर आ जाएगा। इस कंडीशन से बाहर आओगे तो आपका आंसर लेफ्ट में पड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो आपको रिटर्न करना है, रिटर्न। बेसिकली मेरा आंसर लेफ्ट में पड़ा हुआ है, लेफ्ट मेरा मिड है, सॉरी लेफ्ट मेरा लॉन्ग है, तो मेरे को आंसर देना इंट में, तो टाइप कास्टिंग तो होगी, सीधी सी बात है। और मेरा आंसर क्या है? लेफ्ट, राइट। हो गया सॉल्व, रन करें। हाँ, तो ये लॉन्ग होगा, कह रहा था ना, इसको देखते हैं बाद में क्या करना है। टाइप कास्टिंग चल गया, पर अभी यहाँ पे एक कंडीशन है, बेस कंडीशन की, ये बोला है कि आपको मॉड्यूलो भेजना है। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि आप देख ही रहे हो ना कि मेरी रेंज जो है वो 13 तक है ना, 10^13 तक, तो वो बोला 10^9 तक लिमिट करो उसको। तो इसको लिमिट करने का सिंपल तरीका है, कुछ नहीं, लेफ्ट मॉडुलस 10^9 है ना, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 7, सबमिट। रॉन्ग आंसर। टेस्ट केस कॉपी कर लेते हैं, रन करते हैं। क्या इशू रह गया इसमें? अरे यार, ये टाइप कास्टिंग ना, हो गया एक्सेप्ट। ठीक है भाई लोग, ये आंसर लेफ्ट में कैसे लाई कर रहा है इस लूप से बाहर आने के बाद, ये आपका होमवर्क है। 1-2 टेस्ट केस, 1-2 ड्राई रन करो, और ये इसमें लेफ्ट में लाई करेगा। मैंने इसको जब किया था तो मैंने ड्राई रन किया था, मैं भी वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, तो ऑल राइट, बाय।